Assalamu alaikum. Psychologist Sayyida Sanamjid here. And dear students, today's our lecture is about sensation. Now, let's start our definition of sensation. What is sensation and what is perception? Sensation, a process by which our sensory receptors and nervous system receive and represent stimulus and energy. Sensation are basically connected to our nervous system. These are our sense receptor. We have basically five senses: sense of taste, sense of touch, sense of smell, sense of audition, and sense of sight. And the sixth one is intuition, which we call chatti his or an prophecy or future foretelling. So this is exceptional sense. But we have to focus on five basic senses, which are taste, touch, smell, audition, and perception. Perception is related to our sense of sight, our vision. And perception is a process of organizing and interpreting sensory information, enabling us to recognize meaningful objects and events. Now, perception is the way one perceives something in surrounding, the way one perceives something in an environment. Now, the thing that might be pleasurable for you people may not necessarily be pleasurable for me, and the things that are pleasure for me may not necessarily be pleasure for you people. So there is a individual differences in perception. There are individual differences in behavior. Clear? Sensation and perception. Sensation is like your window to the world, or we can say sensation is a window to our external world, and perception is interpreting what comes in your window. And perception is related to your internal world, and sensation is related to your external world. External world is your surrounding, and in your surrounding you observe, you see, you watch lots and lots of different things. आप अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं ना। उसमें आप एनिमल्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, फूड आइटम्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, ह्यूमंस को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं। ये हो गया आपका सेंसेशन। सेंसेस के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू योर सेंसेस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेंसेशन। सेंसेशन में बेसिकली आपका आईज यूज हो रहा है, आपके नोज यूज हो रहे हैं, आपका टंग यूज हो रहा है, आपके ईयर्स यूज हो रहे हैं, आपका नोज यूज हो रहा है। ये हो गया सेंसेशन। परसेप्शन, ये चीज़ें आपने किस तरह पिक की, what's the way of taking all the external information surrounding uh, by yourself, surrounding by your community. तो ये परसेप्शन, वो चीज़ें पिक करना, वो पिक करने की जो कैपेसिटी होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल परसेप्शन। Now basic, what is basic of basic principles of sensation and perception, sorry, sensation. The most famous thing related to sensation is psychophysics. Now, what is psychophysics? It is the relationship study between the physical characteristics of a stimuli and our psychological experiences of them. Now, stimulus, what is stimulus and what is response? Anything surrounding to you is called stimulus. आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपकी मदर, आपके फादर, कोई भी चीज़, वो स्टिमुलस है। इसको हम स्टिमुलस नेम देते हैं साइकोलॉजी में। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स? आप उनकी तरफ कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप उनकी तरफ किस वे से जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली जो हमारी सारी लाइफ है ना, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एस एंड आर।
एस एंड आर का जो फिनोमिना है वही न्यूटन्स का एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं साइकोफिजिक्स की रिलेशन की कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। फिजिकल वर्ल्ड में आप लेट सपोज लाइट देखते हैं, तो लाइट का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस आपका क्या है? या बहुत ज़्यादा तेज होगी या डिम होगी। साउंड है, वॉल्यूम हाई होगा लो होगा, प्रेशर है, वेट ज़्यादा होगा कम होगा, टेस्ट है, स्वीटनेस होगी बिटरनेस होगी, स्पाइसीनेस हो गई सेवरी हो गई। ये आपका हो गया साइकोलॉजिकल। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट या साउंड की बात, तो हम स्पेसिफिकली बताते हैं ना कि आवाज़ तेज करो, आवाज़ स्लो करो, वॉल्यूम हाई करो, वॉल्यूम लो करो, बोलते हैं ना। अब ये साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। हमने जस्ट साउंड सुना या हमने जस्ट टेस्ट सुना। अब टेस्ट है, लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि स्वीट आइटम्स है ना, अब स्वीट्स में मिठाई आ गई। अब जैसे मैंने स्वीट्स का नाम लिया, तो स्वीट्स के नाम के साथ ही आपको ये थोड़ी लगा कि वो चीज़ कड़वी होगी, वो स्पाइसी होगी। आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको कहते हैं ये चीज़ मीठी है, मिठाई मीठी है। मैंने आपको कोई स्पाइसी फूड आइटम का नाम लेके दिया, मैंने कहा बिरयानी है, तो आपके माइंड में ये थोड़ी है कि बिरयानी है, दिस दिस इज अ स्वीट थिंग और दिस इज अ सेवरी थिंग। आपके माइंड में एक स्पाइसी डिश आ गई। आपको वो साइकोलॉजिकल प्रीवियस एक्सपीरियंस था ना। हुँ? जैसे आप गाड़ी गाड़ी चलाते हैं, एक टाइम पे आपने सॉन्ग्स वगैरह सुन लिए, फिर अब दोबारा से आप जब बैठ जाते हैं, ऑन करते हैं, वही सॉन्ग लगे होते हैं, तो आपका उस टाइम वही सॉन्ग दोबारा से सुनने को दिल नहीं होता, अब बंद कर देते हैं। वो आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना हुआ। साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब आपका हिपोथैलेमस थैलेमस जो है, वो उसका इमोशनल स्टेट पहले कुछ और था। फिर आपका जो साइकोलॉजिकल हिपोथैलेमस और थैलेमस का जो इमोशन को कंट्रोल करते हैं, उसका स्टेट कुछ और है। तो आपने वो साउंड, वो वॉल्यूम, वो पिच वो हटा दी। क्लियर। तो साइकोफिजिक्स इज द रिलेशनशिप स्टडी बिटवीन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो आपका सराउंडिंग वर्ल्ड है, आपका एनवायरनमेंट है, टू आवर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस आपका प्रीवियस एक्सपोजर, आपकी विजिलेंट ऑब्जर्वेशन ऑन अ बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। क्लियर। नाउ स्टडी आई। आई इज one of the part of a sensation. Now anatomy of eye, ये pupil, lens, iris, cornea, blind spot, visual cortex, optic nerves to the brain's visual cortex, fovea, point of central focus, retina, blind spot, ये आपका हो गया anatomy of eye. Parts of eyes, cornea, क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू वेयर लाइट एंटर्स द आईज। आपके जो सेंटर ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसमें लाइट आती है। फिर आयरिस का इसमें क्या फंक्शन होता है? आयरिस muscle, these are the muscle that expands and contract the change the size of opening pupil for light. अब आप जा रहे हैं या कहीं पे बैठे हैं या कुछ पे तेज लाइट आती है, ऑल ऑफ सडन आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, या आप आपकी आंखें जो है वो ज्यादा बंद हो, थोड़ी सी वो खुली हुई होती है ना, अधखुली आंखें जो होती हैं। तो ये फंक्शन जो है वो आयरस प्ले करता है। लेंस क्या है? फोकस द लाइट रेज टू द रेटिना। अब कॉर्निया की बेस पे लाइट इंटर हो गई, आयरस का क्या काम हो गया? एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करना हो गया, प्यूपल का साइज जो है। लेंस का क्या होता है? लेंस वो जो लाइट रेज आई होती है कॉर्निया के बेस पे, वो उसको रेटिना तक पहुंचाता है। अब रेटिना जो है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं दैट प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द ब्रेन। यही रेटिना जो है, ये इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स हो गए। यही रेटिना ब्रेन को सिग्नल फॉरवर्ड करता है कि मैंने क्या देखा, मैंने कौन सी चीज देखी। अब ब्रेन डिसाइड करता है, इम्पल्सेस फॉरवर्ड करता है टू योर बॉडी कि हाउ टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स दैट द रेटिना परसीव। जो कि रेटिना ने चीजें देखी हैं, जो रेटिना ने देखा है,
ब्रेन सिग्नल फिर बॉडी को पास करता है कि इस पे हमने कैसे एक्ट करना है। क्लियर? Lens, the transparent structure behind the pupil that change shape to focus image on the retina. ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हो गया, प्यूपिल साइज हो गया, डिस्टेंस पे फोकस करता है। अकोमोडेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द आईज लेंस चेंजेस शेप टू हेल्प फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब दूर और पास की जो चीजें होती है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन प्रोसेस में हमेशा सुनते हैं ना लोगों को, किसी की जो है आई साइट करीब की जो है वीक है, किसी की दूर की है, फॉर साइटेडनेस है और नियर साइटेडनेस है। क्लियर? अब दूर की खराब होना और पास की खराब होना क्या है? लेंसेज ही है। लेकिन कौन सा लेंस खराब है? वो जो जो नियर ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा, या जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा। अकोमोडेशन प्रोसेस में नियर और फार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इस पे जो रेटिना का फोकस होता है इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। नियर साइटेडनेस, a condition in which a nearby objects are seen more clearly than the distinct object। आई साइट प्रॉब्लम आ जाती है ना, आई साइट जब वीक हो जाती है। नियर साइटेड में क्या है कि ऐसी कंडीशन है इन विच द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर सीन मोर क्लियरली, जो नज़दीक की चीज़ें वो आपको क्लियर दिख रही हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें वो आपको क्लियर नहीं दिख रही। उसके लिए आपको लेंस की ज़रूरत होगी, उसको आर्टिफिशियल लेंस की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको ग्लासेस की ज़रूरत होगी। एक ऐसी कंडीशन होती है फार साइटेडनेस, अ कंडीशन इन विच अ फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर सीन मोर क्लियरली देन नियर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दूर की चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आती है और जो पास की चीज़ें हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती। मोस्टली हम सुनते हैं कि आफ्टर 30 जो है और आफ्टर 35 जो है, 35 वो जो है वो पास वाली नज़र ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, दूर वाली नज़र सही होती है। यंग एज में क्या होता है, दूर वाली जो नज़र है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो लेंस का जो है एक नियर साइटेडनेस है, एक फार साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस में जो करीबी चीज़ें हैं जो आपके इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द है, आपके पास है, वो आपको क्लियर नज़र आती हैं। फार साइटेडनेस में क्या होता है कि वो चीज़ें जो दूर है उस पर आपका फोकस ऑफ रेटिना ज़्यादा होता है। नाउ रेटिना, what is retina? The light sensitive inner surface of the eye containing receptors, rods and cones, in addition to layers of other neurons, bipolar ganglion cell that process visual information. Rods and cones are related to your colors। कुछ लोग होते हैं ना जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जो कि रेड ग्रीन ब्लू जो प्राइमरी कलर्स है ना, प्राइमरी कलर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब रेड ब्लू एंड ग्रीन जो है ये रोड एंड कौन से डिसाइड करता है। अब जिनके जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनका रोड एंड कौन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए उनको चीज़ें जो है वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब इसके लिए आजकल तो कलर ब्लाइंड के लिए जो है मोनोक्रोमेटिक जो है ग्लासेस आई हैं, उसके बेसिस पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे इसको सर्च करें तो आपको इसके ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। जैसे अगर हम हनी बी की बात करें ना, अब हम ह्यूमन है, हम हमें बेसिक प्राइमरी कलर्स का पता है, क्योंकि हमारा रोड एंड कौन जो है वो एक्टिव है, वो माशाल्लाह से वो हेल्दी है। तो जितना भी कलर्स है वो बेसिक प्राइमरी कलर्स की कम्बिनेशन ही से बना है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अब इनको कंबाइन करके ही डिफरेंट कलर्स बनते हैं। आप अगर हनी की बी की बात करते हैं ना, तो हनी बी को जो है वो सब कुछ ब्लू ही दिखता है। उसका रोड्स एंड कॉन जो है वो हर एक चीज़ जो है वो ब्लू ही कैप्चर करती है। स्काई भी ब्लू है, ट्री भी ब्लू है, फ्लावर भी ब्लू है, ह्यूमन भी ब्लू है, एनिमल्स भी ब्लू है। ईच एंड एवरीथिंग इज ब्लू फॉर हनी बी। ऑप्टिक नर्व, optic nerve, blind spot and fovea. Optic nerve carries neural impulses from the eye to the brain.
इम्पल्सेस है ना, सिग्नल्स लेके जा रहा है आई से ब्रेन की तरफ। वही सिग्नल जो कि रेटिना ने परसीव की चीजें ना, रेटिना ने परसीव किया, रेटिना की परसेप्शन होगी, उसने जो एनवायरनमेंट में देख लिया, अब वो जो है ब्रेन तक सिग्नल कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व लेके जाता है ब्रेन को बताने के लिए कि मैंने क्या देखा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बिकॉज देयर आर नो रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड देयर। जब हम बिल्कुल ब्लैंक पोजीशन पे होते हैं ना, तो तब जो है ब्लाइंड स्पॉट जो है वो अकर होता है और ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल पास करना छोड़ देती है। दिस क्रिएट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। फोविया क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट इन द रेटिना अराउंड विच द आईज कॉन्स क्लस्टर्स। फोविया क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रेटिना है, जो रेटिना का दिल है, इसको हम कहते हैं ना फोविया। और रेटिना का जो दिल है यही इंफॉर्मेशन को इन एन ऑर्गेनाइज्ड और ऑथेंटिक वे ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाता है। वही ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक उसको लेके जाता है, फिर ब्रेन जो है वापस सिग्नल्स बॉडी को पास करता है हाउ टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स दैट आई परसीव। क्लियर? ये हो गया आपका एक सेंस, जिसको हम कहते हैं ना सेंस ऑफ साइट। फिर आ जाता है हमारा सेंस ऑफ आयोडेशन। आयोडेशन के लिए, सुनने के लिए हमें कानों की जरूरत होती है। तो नाउ सी द एनाटॉमी ऑफ आयोडेशन। आयोडेशन इज, दिस इज अ सेंस ऑफ हियरिंग। आपके सुनने की जो सलाहियत है इसको हम आयोडेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव लेंथ्स दैट पास अ पॉइंट इन अ गिवन टाइम एंड पिच अ टोन हाईनेस और लोनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या, जब आवाज आपको कंप्लीट सुनाई दे रही है, कभी कभी हम आधी बात सुन लेते हैं आधी बात नहीं सुनते, वो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस आ जाती है। वो डिस्टरबेंस हमारा हमारे खुद के बॉडी लीजन भी हो सकता है या हमारे इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। जो हमारे एयर है ना, एयर हवा जो है आवाज को आपके कानों तक पहुंचाती है ना। अब अगर एयर जो है आपकी वॉइस को सही से नहीं पहुंचा रही आपके ईयर तक, दिस इज व्हाट वी कॉल साउंड बैरियर। साउंड बैरियर की डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन सेंस के सेंस ऑफ आयोडेशन के बेसिस पे जो साउंड बैरियर है उसमें क्या होता है, तो आपको वॉइस की फ्रिक्वेंसी सही से नहीं मिलती। पिच क्या है, हाईनेस और लोनेस है। हाईनेस और लोनेस क्या है, हमारे ईयर्स में अल्लाह की तरफ से एक ऐसी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि हम वॉइस अगर कितना भी तेज है, हम उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही, एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी, एक लिमिटेड पिच तक ही सुनते हैं। लेकिन अगर ये कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने ना रखी होती तो हमारे कानों के जो पर्दे हैं वो फट जाते, हम बहरे हो जाते, हमें कुछ भी सुनाई ना देता। क्लियर? नाउ anatomical division of ear. Ear is basically divided into three parts: external ear और outer ear, middle ear and inner ear. external ear जो visible portion है आपका ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, इसका क्या फंक्शन है, गैदरिंग साउंड एनर्जी एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड प्रेशर। पिना, एक्सटर्नल म्यूटस, ईयर ड्रम, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो है ये आपके एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। मिडल ईयर जो है फंक्शन क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मिडल। अब एक्सटर्नल ईयर जो विजिबल पोर्शन है, विजिबल जो पोर्शन है, अच्छा अल्लाह ताला ने जो कान दिए हैं ना, हेड के दोनों तरफ है, सर के दोनों तरफ है। रीजन बिहाइंड दिस, ये कान माथे पे भी हो सकते थे, चिन पे भी हो सकते थे, कहीं और भी हो सकते थे, लेकिन सर के दोनों तरफ कान के होने का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस ये है, या दोनों कान एक साथ भी हो सकते थे, बेसिक पर्पस ये है, बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो साउंड आ रही है, साउंड कौन लेके आता है, एयर ही लेके आती है ना, हवा ही लेके आती है। तो ये साउंड जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो इसकी,
और इक्वली दोनों कानों तक पहुंचे। रीजन बिहाइंड इसका ये है, मिडल ईयर जो है, जो आपका इनर पार्ट है, जो ये कान के अंदर का जो सुराख बना है, इसके अंदर जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल मिडल ईयर। ट्रांसमिशन ऑफ ऑस्कोटिक एनर्जी फ्रॉम एयर टू द फ्रॉम एयर, हवा से एनर्जी लेके कोलिया तक लेके जाता है, या हैमर तक, या एनुअल स्ट्रिप्स तक लेके जाता है। ये जो है मिडल ईयर के पोर्शंस हैं। इनर ईयर क्या फंक्शन करता है? ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल वेव साइंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और न्यूरल सिग्नल्स। ये इनर ईयर जो अंदर वाला पोर्शन है, यही फिर ब्रेन को सिग्नल पास करता है कि मैंने क्या सुना। नाउ लुक एट द डायग्राम, वी hear sound waves, the height of the waves gives us the amplitude of the sound, वो कितना शोर से आ रहा है, and the frequency of the waves gives us the pitch of the sound. Clear? Third sense is sense of touch. सेंस ऑफ टच क्या है? इसमें हमारा स्किन इन्वॉल्व होता है, हमारा एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होता है। स्किन सेंसेशन, प्रेशर, ओनली स्किन सेंसेशन विद आइडेंटिफाइबल रिसेप्टर्स। अब स्किन ही आपको बताती है गर्म है, ठंडा है, हाँ, तकलीफ है, पेन है। अब पेन को रिड्यूस करने के लिए कौन से मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एंडोफ्राइन होता है, या बहुत ज़्यादा हम खफा है तो डोपामीन सेक्रेशन, सेरोटोनिन सेक्रेशन के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, नो डोपामीन के लिए, सॉरी, सेरोटोनिन सेक्रेशन के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्किन जो है वो आपको पेन का एहसास दिलाता है, आपको गर्म और ठंडे का बताता है। पेन टेल अस द बॉडी दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। दर्द है तो सिग्नल पास हो रहे हैं ना ब्रेन को, दैट समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, I am pain, there is a damage. Usually pain results from damage to the skin or other tissue. A rare disease exists in which the afflicted person feel no pain. एक प्रॉपर इसका प्रॉपर नेम है, एक डिसऑर्डर है, सॉरी, एक डिजीज है, नॉट अ डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को कोई पेन फील नहीं होता, उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता। लेकिन अगर देखें ना, दर्द जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड कैसे? अगर हम हमेशा खुश रहते या हमेशा खफा ही रहते तो जिंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता। दर्द है, तकलीफ है, पेन है, तो ये हमें अल्लाह की बारगाह तक लेके जाता है, अल्लाह के दर तक लेके जाता है। अगर सारा हम खुशी में रहे, दर्द ना हो, तो कौन अल्लाह को याद करेगा? फिर तो हम अल्लाह को भूल ही जाएंगे। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेन फील नहीं होता, ना बॉडी को ठंडी गर्म का पता चलता है, ना बॉडी को पेन का पता चलता है। ओके, गेट कंट्रोल थियरी, मेल्सिक एंड वॉल 1965 से इन्होंने 1983 तक जो काम किया था, उन्होंने कहा था कि हमारा स्पाइनल कोड जो है वो न्यूरोलॉजिकल गेट है, जो कि या तो पेन को ब्लॉक करता है या पेन को अलाउ करता है कि हम इसको फील करें। अब ये न्यूरोलॉजिकल गेट्स में जो है, अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो हम पेन को फील नहीं करते। अगर ब्लॉकेज नहीं है, इसका फ्लो स्मूथ जा रहा है, तो हम इसको सेंस करते हैं। फोर्थ हमारा जो है सेंस ऑफ टेस्ट है। ट्रेडिशनली टेस्ट सेंसेशन कंसिस्टेड ऑफ स्वीट, salt, savory and bitter taste. Recently receptors for a fifth taste has been discovered called umami, या हम इसको कहते हैं मोनोसोडियम ग्लाटूमेट, जो आपका चाइना साल्ट है ना, चाइना साल्ट का नाम तो सुना होगा ना। तो चाइना साल्ट जो है वो अमामी है, या उसको हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लाटूमेट। स्वीट है, सेवरी है, सॉल्ट है, बिटर है और उमामी है, या मोनोसोडियम ग्लाटूमेट। ये आपका हो गया टेस्ट सेंसेशन। सेंसरी इंटरेक्शन इसका क्या है? व्हेन वन सेंस affects other sense, sensory interaction takes place.
So the taste of strawberry interacts with its smells and its texture on the tongue and produce flavor. अब देखे ना अल्लाह ताला की कुदरत, हमारे मुंह के ऊपर ही थोड़ा सा, उसके ऊपर ही लिप्स के थोड़े से ऊपर ही नोज बनाई है। नोज बनाई है, जब हम कोई चीज खाते हैं तो स्मेल होती है ना, स्मेल होती है। अब स्मेल के बेसिस पे खाने की जो चीज़ है उसका जो है उस स्मेल को हम अरोमा कहते हैं। और जो परफ्यूम या एसेंस होते हैं ना, इस स्मेल को, रोज़ की जो स्मेल है इसको हम फ्रेग्रेंस कहते हैं ना। अब फूड आइटम्स कंफ्यूज मत हो, अरोमा जो है वो फूड आइटम्स के लिए है, बाकी जो फ्रेग्रेंस की स्मेल है या गुलाब का है, रोज़ है, परफ्यूम है, इसको हम फ्रेग्रेंस कहते हैं। तो अरोमा आता है, अरोमा ही हमारा माइंड सेटअप करते हैं चीज़ शायद अच्छी बनी हो, चीज़ शायद बुरी बनी हो। फिर जी सेंसेस एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल हमने नरेट की है स्ट्रॉबेरी की। अब स्वीट स्मेल आ रही है तो फ्लेवर जो है वो टंग पे फील हो रहा है, और स्मेल जो है वो हमने थ्रू आवर नोज ली। कॉम्बिनेशन हो गई ना सेंसेस का। अब एक एट अ टाइम हम डिफरेंट सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन हो रहा होता है सेंसेस का। स्मेल में क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, नेसल पैसेज है, रिसेप्टर सेल्स इन ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है। स्मेल क्या करता है, लाइक टेस्ट, स्मेल इज केमिकल सेंस। Ordnance enter the nasal cavity to stimulate 5 million receptors to sense smell. Unlike taste, there are many different forms of smell. अब taste जो है, there are limited five kind of taste: sweet, savory, salt, bitter, and monosodium glutamate. This is what we call umami. लेकिन smell जो है, स्मेल डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब हम कोई चीज़ सूंघते हैं ना, तो स्मेल करते हैं, वो स्मेल जो है हमारी नोज के थ्रू जाता है ना। अब वो जस्ट 5 टाइप्स ऑफ स्मेल नहीं है, देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड टाइप्स ऑफ स्मेल। एज, जेंडर एंड स्मेल, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई smell peaks during early childhood but steadily declines after that. Women are better at detecting odors than men. अब यहाँ पे औरत अच्छी हो गई, हालांकि इस्लाम में तो मर्द और औरत बराबर है, इक्वलिटी और सुपीरियरिटी, इनइक्वालिटी, इंफीरियरिटी, ये सारे कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इक्वलिटी के बेस पे चलता है, तकवा मसावात के बेस पे। अब औरत जो है वो इजीली या ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करती है स्मेल को, ऑर्डर को, एज कम्पेयर टू मैन। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे या बच्ची छोटी होती है, उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है रादर देन मिडिल एज पीपल। बॉडी पोजीशन एंड बॉडी मूवमेंट, the sense of our body parts position and movement is called kinesis. The vestibular sense monitor the head and body position. ये जो दरवेश लोगों का आपने सुना है या देखा होगा, जो पोर्ट्रे करते हैं कि वो जी गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिस तरह पिक्चर में इमेज मैंने आपके लिए वो की है, तो ये इसको हम कहते हैं ना वज्द की कैफियत, वो दुनिया जहान से बेखबर हो जाते हैं। अब दरवेश लोग जो हैं, इनको अगर देखिए बॉडी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये होते हैं नफ्स मुतमइन्ना, कंप्लीट कंट्रोल ऑन देयर नफ्स, complete, they have complete control on their desires, on their lust. Having a complete control on one's own self, one own body, one own desire, one own lust, gain the greater greater position near to Allah Almighty, Allah Subhanahu wa Taala. अब काइनेटिसिस में क्या है, बॉडी मूवमेंट है, पोजीशन है, आप गिरते थोड़ी हैं, आप मेंटेन रख रहे हैं। आपका जो माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो एक्टिव जा रहा है। जिस तरह आप चलते हैं, एक पाँव उठाते हैं, दूसरा ज़मीन पे होता है,
आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए, 1 सेकंड के हज़ारों हिस्से के लिए आपका पाँव हवा में होता है ना, जब तक वो ज़मीन पे नहीं आ जाता। एक पीछे होता है आपका पाँव, एक आपका हवा में होता है स्टेप लेने के लिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट. So this was all about your today's lecture, which was about sensation. Repeat करते हैं थोड़ा सा. We have basically 5 senses: sense of smell, sense of taste, sense of touch, sense of sight, sense of audition, and sixth one is intuition या prophecy, जो कि बहुत ही कम लोगों के लिए होता है. फिर हमने पढ़ा कि जो वुमेन होते हैं, they are best detector of order as compared to male. In childhood, our sense of smell is very active as compared to elder in our elder age. सेंसेशन हमारे क्या है? पिकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आर एक्सटर्नल वर्ल्ड. परसेप्शन हमारा क्या है? दिस इज़ अ विंडो और इंटरप्रिटेशन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड. और यही सेंसेशन परसेप्शन जो है, आपने जो इन्वायरमेंट में परसीव किया, जो देखा, उसके सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पास करते हैं, एंड देन ब्रेन डिसाइड करता है हाउ टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स दैट अ पर्सन परसीव्स थ्रू देयर सेंसेस. क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. मेजॉरिटी ने जो डिमांड की थी कि उर्दू में लेक्चर हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग, कि मैं उर्दू में ही आपके लिए जो है लेक्चर की डिलीवरी प्रेजेंट करूँ. कोई भी क्वेश्चन हो आप LMS क्वेरीज पे डाल सकते हैं. विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड आंसर एज सुन एज पॉसिबल. और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं. बस बेटर कन्वीनियंट इज़ टू पुट योर क्वेश्चन ऑन LMS. ओके जी, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.